قلعے میں فوج سوئی ہوئی تھی۔ ابن العون دوڑ کر قلعے کے ایک مینار پر گیا۔ دور اسے آگ کے شعلے نظر آئے۔ وہ ابھی سوچ بھی نہ پایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کرے کہ سلطان ایوبی کا ایک جانباز جیش اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے محافظوں نے مقابلہ تو خوب کیا لیکن مارے گئے اور ابن العون کو قید کر لیا گیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب ابن العون کو سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ سلطان ایوبی حکم دے چکے تھے کہ قلعے کو مسمار کر دیا جائے۔ ان کی فوج اس کام کے لیے کافی نہیں تھی۔ عز الدین بھی سلطان ایوبی کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی کے کہنے پر ابن العون نے ہر طرف قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب آ جائے۔ فوج کے آنے تک سلطان ایوبی نے عز الدین کے کہنے پر ابن العون کے ساتھ صلح کی شرائط طے کر لی۔ ان میں ایک یہ تھی کہ ابن العون اپنی آدھی فوج سلطان ایوبی کے حوالے کر دے، دوسری یہ کہ ابن العون کی فوج کی حد مقرر کر دی گئی، تیسری یہ کہ ابن العون سالانہ جزیہ دیتا رہے، اور ایسی چند اور شرائط تھیں جنہوں نے ابن العون کو برائے نام حکمران رہنے دیا۔ جب ابن العون کی فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب اکٹھی ہو گئی تو سلطان ایوبی نے اس فوج کو حکم دیا کہ قلعے کو اس طرح مسمار کر دیں کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ شکست خوردہ فوج نے اسی وقت قلعہ مسمار کرنا شروع کر دیا اور سلطان ایوبی اپنی فوج کو مسافہ نام کے ایک گاؤں کے قریب لے گئے۔ انہوں نے حلب کی فوج واپس بھیج دی اور اپنی فوج کو آرام کی لمبی مہلت دی۔ ابن العون کی جو آدھی فوج انہوں نے لی تھی وہ عز الدین کو دی، مگر سلطان ایوبی کو معلوم نہ تھا کہ ان کی فوج کی خیمہ گاہ جس سلسلہ کوہستان کے دامن میں ہے اس کے اندر اور اس کی بلندیوں پر بلڈون کی فوج آ چکی ہے اور وہ عقاب کی طرح ان پر جھپٹنے کو پر تول رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے اس علاقے میں دیکھ بھال کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کیونکہ انہیں کسی فوج کا خطرہ نہیں تھا۔ تقریباً تمام مورخوں کی تحریروں سے حیرت کا اظہار ہوتا ہے کہ سلطان ایوبی نے عز الدین کے پیغام پر کیوں اپنا اتنا بڑا پلان تبدیل کر کے ابن العون جیسے غیر اہم حکمران پر فوج کشی کی، جس میں انہوں نے بے شک فتح حاصل کی لیکن جو وقت اور جو فوج ضائع ہوئی اس کی قیمت زیادہ تھی۔ ارنول نام کا مورخ لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی ارد گرد کے خطروں کو کم کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت کے وقائے نگار جن میں اسد الاسدی قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی عز الدین کا پیغام پڑھ کر جذبات کے غلبے میں آ گئے تھے۔ بہرحال جنگ کے ماہرین نے سلطان ایوبی کے اس حملے کو سراہا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ قریب ہی کہیں شاہ بیلڈوین کی فوج ہے جو سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر سکتی تھی جب وہ ایک ہی رات میں حاصل کی ہوئی فتح کے مابعد کے انتظامات میں مصروف تھے۔ مورخ اس بات پر بھی حیران ہے کہ بیلڈوین نے اپنی فوج کو اس وقت پہاڑی علاقے میں جنگی ترتیب میں پھیلا دیا تھا جب سلطان ایوبی کی فوج پہاڑیوں کے دامن میں خیمے گاڑ رہی تھی۔ شاہ بیلڈوین نے حملے میں تاخیر کی۔ کسی بھی مورخ کو معلوم نہیں کہ یہ اس کی شاہانہ حماقت تھی یا کوئی مجبوری۔ اگر وہ اسی وقت حملہ کرتا تو سلطان ایوبی کی حالت وہی ہوتی جو رملہ میں ہوئی تھی، شکست اور پسپائی۔ سلطان ایوبی کو وہاں خیمہ زن ہونے کے بعد بھی پتہ نہ چلا کہ شاہ بیلڈوین ان کے سر پر بیٹھا دانت تیز کر رہا ہے۔ بلندیوں سے بیلڈوین کے دیکھ بھال والے آدمی سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے اور بیلڈوین کو بتاتے رہتے تھے۔ یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کا جاسوسی اور دیکھ بھال کا نظام ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تبریز بھی اس فوج کے ساتھ تھا۔ ویرا نے ابھی تک اسے بتایا نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے آئی ہے۔ وہ شاید اسے عیسائی بنا کر جاسوس بنانا چاہتی تھی۔ اس میں دونوں باتیں تھیں، صلیب کی وفاداری بھی اور تبریز کی محبت بھی۔ شاہ بیلڈوین کو تبریز کے ساتھ کوئی دلچسپی تھی یا نہیں، اسے ویرا کے ساتھ گہری دلچسپی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک روز ویرا نے بیلڈوین سے کہا تھا کہ وہ اسے اس کے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دے جو اکرا میں تھا۔ بیلڈوین نے اسے روک دیا تھا۔ یہ اس جگہ کی باتیں ہیں جو ہومس کے قریب تھی۔ ایک روز بیلڈوین کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ سلطان ایوبی کی فوج تل خالد کو جا رہی ہے۔ بیلڈوین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی ابن العون پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اس علاقے سے واقف تھا۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو مسافہ کی پہاڑیوں کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو ان پہاڑیوں میں گھسیٹ کر لڑائے گا۔ اس پلان کے مطابق اس نے پہاڑیوں کی موزوں بلندیوں اور ڈھکی چھپی جگہوں میں اپنی فوج کو پھیلا دیا۔ یہ بہت بڑے پیمانے کی گھات تھی۔ اس نے جب ہومس کے قریب کی خیمہ گاہ سے کوچ کا حکم دیا تو ویرا نے اس سے کہا کہ وہ اس کے پاس پناہ لینے آئی تھی۔ تبریز کے متعلق اس نے بیلڈوین کو ساری کہانی سنا کر بتایا تھا کہ وہ اسے کیوں ساتھ لیے پھرتی ہے۔ اب جب کہ بیلڈوین لڑنے کے لیے جا رہا تھا، ویرا اور تبریز کا اس کے ساتھ رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، مگر بیلڈوین نے ویرا کو نہ جانے دیا۔ میرے ہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، بیلڈوین نے کہا، مگر تم پہلی لڑکی ہو جس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تم کچھ عرصہ اور میرے ساتھ رہو۔ ویرا اپنے بادشاہوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔
बेल्डविन की नीयत को समझना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने साफ अल्फाज में उसे ये कह दिया, अगर बात रूहानी सुकून की है तो मुझे ये सुकून उस मुसलमान से मिलता है जिसका सारा कुंबा कत्ल करा के मैं उसे साथ साथ लिए फिरती हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैंने उसे उसके कुंबे के कत्ल से बेखबर रखने का जो गुनाह किया है उसका कफारा मेरा ज़मीर मुझसे किस तरह अदा कराएगा। तुम्हारी भी रूह है, बेल्डविन ने तंजिया कहा। तुम्हारा ज़मीर है? रातें मुसलमान उमरा के साथ गुजारने वाली गुनाह का कफारा अदा करने की भी सोच सकती है? आपके सामने मैं सिर्फ जिस्म हूँ, दिलकश जिस्म, वीरा ने कहा। और जब मैं तब्रेज के पास होती हूँ तो रूह होती हूँ, प्यार की प्यासी रूह। बेल्डविन बादशाह था। उसने बादशाहों की तरह हुक्म दिया, तुम मेरे साथ रहोगी। उसने दरबान को बुलाकर कहा, उस मुसलमान के पांव में जंजीर डाल दो जो हमारी खैमागाह में रहता है। और जब बेल्डविन मुसाफा की पहाड़ियों में जा पहुंचा तो तब्रेज जंजीरों में बंधा हुआ कैदी था और वीरा ऐसी कैदी जिसे जंजीर नहीं डाली गई थी। वो मुहाफिजों के पहरे में थी। यहाँ आकर बेल्डविन अपनी फौज के डिप्लॉय में मसरूफ हो गया। फारिग हुआ तो उसने वीरा को तड़पाना शुरू कर दिया था। उसका तरीका यह था कि तब्रेज को अपने सामने बुला लेता, वीरा को सामने खड़ा कर लेता और हुक्म देता कि तब्रेज को कोड़े मारे जाएं। कोड़े तब्रेज की पीठ पर पड़ते तो चीखें वीरा की निकल जाती थी। बेल्डविन वीरा से कहता, तुम अपने आप को मुझसे बचा नहीं सकती, मैं तुम्हें इस जबान दराजी की सजा दे रहा हूं जो तुमने मेरे साथ की थी। तब्रेज तो जैसे गूंगा और बहरा हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। उसे यकीन नहीं आता था कि उसे ये सजा वीरा दिला रही है। वीरा की चीखों और आहोजारी से वो समझ गया कि वीरा भी मजलूम है। तब्रेज बर्दाश्त करता रहा, मगर एक रोज वीरा की बर्दाश्त टूट गई। वो बेल्डविन के पास चली गई, उसके पांव पकड़कर माफी मांगी और कहा कि जब तक कहेंगे और जिस तरह कहेंगे आपके साथ रहूंगी, तब्रेज को छोड़ दें। बेल्डविन के हुक्म से तब्रेज की जंजीरें खोल दी गईं और उसकी मरहम पट्टी का इंतजाम कर दिया गया। वीरा बादशाह बेल्डविन की तन्हाई की रौनक बन गई। चंद दिनों बाद बेल्डविन ने रात शराब और वीरा के हुस्न से बदमस्त होकर उसे कहा, अगर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को तब्रेज की तरह जंजीरों में बांधकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं, तो मान जाओगी कि मैं इतना बूढ़ा नहीं जितना तुम समझती हो। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहूंगी कि मैं मलका बेल्डविन हूं। वीरा ने कहा, अपनी तलवार मेरे कदमों में रख दो, 2 रोज बाद मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा जो मैंने कहा है। बेल्डविन ने कहा, मुमकिन नजर नहीं आता। वीरा ने कहा, तुमने देखा नहीं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मेरे कदमों में पड़ाव डाल रखा है। बेल्डविन ने कहा, परसों सुबह की तारीकी में हम उस पर हमला करेंगे, बेशतर इसके कि उसे मालूम हो कि ये क्या हुआ है। वो मेरा कैदी होगा, उसे मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं। तब्रेज आजाद था। इसके मुतालिक बेल्डविन ने कोई फैसला नहीं किया था कि वो चला जाए या रहे या क्या करे। वो शाही मेहमान बना हुआ था। सुबह तुलू हुई तो वीरा तब्रेज के खैमे में चली गई। तब्रेज बेताबी से उसे मिला और उस पर बरसा। ज्यादा बातों का वक्त नहीं, वीरा ने उसे कहा, मैं आज तुम्हारे एहसान का सिला और तुम्हारी मोहब्बत का जवाब देना चाहती हूँ। मैं जो कहती हूँ वो करना, मुझसे कुछ ना पूछना। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, तुम्हारा हुमस तबाह हो चुका है, वहां ना जाना, वहां खंडर होंगे और तुम्हें वहां अपने घर वालों की हड्डियां मिलेंगी। उसने तब्रेज को उस तबाही की और तब्रेज को बचाने की तफसील सुनाकर कहा, तुम्हें बेल्डविन की फौज से इंतकाम लेना है। आज रात इस तरह पहाड़ी इलाके से निकल जाओ कि तुम्हें कोई देख न सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाओ और उसे बताओ कि सलीबी फौज तुम्हारे सर पर बैठी है और परसों तुम पर हमला कर देगी। वीरा ने उसे बेल्डविन के हमले का सारा प्लान बता दिया और कहा, अब मेरी तरफ न देखो वरना यहां से हिल नहीं सकोगे। मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी मंजिलें जुदा जुदा हैं। आज हम दोनों ने अपनी अपनी मंजिल पा ली है। अगर वीरा उसे हम्स की तबाही और कत्लेआम की कहानी न सुनाती तो तब्रेज वहां से इतनी जल्दी न चलता। वो आंखों में आंसू लेकर वीरा से जुदा हुआ। शाम तारीख होते ही वो चुपके से निकला और बचता बचाता निकल आया। सुल्तान अय्यूबी की फौज की खैमागाह में आया और कहा कि वो सुल्तान के पास जाना चाहता है। उसे वहां पहुंचा दिया गया। सुल्तान अय्यूबी ने उसकी सारी दास्तान तहम्मुल से सुनी और उससे बेल्डविन की फौज और उसके प्लान के मुतालिक पूरी इत्तला ले ली। उन्होंने उसी वक्त अपने सालारों को बुलाया और जरूरी अहकाम दिए। शाह बेल्डविन ने तीसरी रात के आखिरी पहर सुल्तान अय्यूबी की खैमागाह पर हमला किया, मगर वो सिर्फ खैमे थे, फौज नहीं थी। अचानक फजा में फीते वाले तीरों के शरारे उड़े और खैमों पर गिरे। खैमे जिनके अंदर खुश्क घास और उस पर आतिशगीर सियाल छिड़का हुआ था, मुहीब शोले बन गए। बेल्डविन ने यह हालत देखी तो उसने अपने मजीद दस्तों को हमले के लिए भेजा। उन पर दाएं और बाएं से तीरों की बौछारें पड़ी। सुबह हो गई। बेल्डविन की इस फौज पर जो वादियों में छुपी हुई थी हमला हो गया। तब बेल्डविन को एहसास हुआ कि उसने सुल्तान अय्यूबी को बेखबरी में नहीं लिया, बल्कि वो खुद सुल्तान अय्यूबी की घात में आ गया है। बेल्डविन एक बुलंदी पर जा खड़ा हुआ और अपनी फौज का हश्र देखने लगा। अकब से उस पर तीर आए, मगर वो इसके 2 मुहाफिजों को लगे।
वो भाग कर नीचे उतरा तो आगे से सुल्तान अयूबी के सिपाही आ गए। बेल्डविन एक तंग से रास्ते से निकल भागा। अक्टूबर 1179 ईस्वी बमुताबिक 575 हिजरी के इस मार्के में बेल्डविन कैदी होते होते बचा। सुल्तान अयूबी ने रमला की शिकस्त का इंतकाम ले लिया, जिससे उनकी फौज का हौसला बुलंद और खुद एतमादी बहाल हो गई। रजी खातून को खादिमा ने इत्तला दी कि उसे उसकी बेटी शमसुन्निसा मिलने आई है। रजी खातून की आंखें ठहर गईं, फिर उन आंखों से आंसू जारी हो गए। माँ बेटी उस वक्त जुदा हुई थीं जब बेटी की उम्र 9 साल थी। अब बेटी 15 साल की हो चुकी थी। माँ को दौड़कर बाहर निकल जाना और अपनी बिछड़ी हुई बेटी को सीने से लगा लेना चाहिए था, मगर माँ ने गुस्से से पूछा, वो क्यों आई है? आपसे मिलने आई है खातून। खादिमा ने कहा, शायद आपके पास वापस आ गई है। माँ पर खामोशी तारी हो गई। खादिमा मुंतजिर खड़ी थी। माँ ने कहा, उसे कहो वापस चली जाए, अपने गद्दार भाई के पास जाए, मेरे सामने आने की जुर्रत न करे। ये तो उस वक्त बच्ची थी जब आपका बेटा उसे अपने साथ ले गया था। खादिमा ने कहा, मासूम बच्ची को क्या मालूम था कि भाई उसे कहाँ ले जा रहा है? मैं जानती हूँ उसे भाई ने भेजा है। रजी खातून ने कहा, और मैं ये भी जानती हूँ कि क्यों भेजा है। मेरा बेटा गद्दार और बेगैरत है, मैं बेटी से नहीं मिलूंगी। रजी खातून नूरुद्दीन जंगी मरहूम की बेवा थी। इस सिलसिले में आपको पिछली अक़सात में हमने काफी तफसील से बताया है कि इस्लाम की अजमत के पासबान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए तो उनके उमरा और वज़रा और बाज फौजी हुक्काम ने मनमानी करने के लिए उनके बेटे अल-मुल्क सौले को सुल्तान बना दिया था। सौले की उम्र सिर्फ 11 साल थी। शमसुन्निसा उसकी छोटी बहन थी, उम्र 8-9 साल थी। जंगी मरहूम की सल्तनत के तहत बाज उमरा और कलादारों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और वो बगदाद की खिलाफत तक से आजाद हो गए। उन सब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ महाज कायम कर लिया। उस वक्त सुल्तान अयूबी मिस्र में थे। जंगी मरहूम और सुल्तान अयूबी के खिलाफ इन उमरा वगैरह को ये शिकायत थी कि इन दोनों ने ऐशो इशरत ममनू करार दे रखी थी। उन्होंने अपने जीने का मकसद सिर्फ ये बना रखा था कि सलीबियों के अज़ाइम को तहस नहस करेंगे, फलस्तीन को आजाद कराएंगे और सल्तनत इस्लामिया को वुसअत देंगे। बागी उमरा पर सलीबियों के असरात भी थे, इसलिए वो ऐशो इशरत के दिलदादा थे। सलीबियों की भेजी हुई लड़कियों और ज़रो जवाहिरात ने उनका ईमान खरीद लिया था। नूरुद्दीन जंगी तो फौत हो गए थे। अब ये लोग सुल्तान अयूबी को शिकस्त देकर उनकी हुक्मरानी को खत्म करने पर तुले हुए थे। जंगी मरहूम की आधी फौज बागी कर ली गई थी। सुल्तान अयूबी को इत्तला मिली तो वो सिर्फ 700 सवारों के साथ दमिश्क में दाखिल हुए। शहरियों ने उनका इस्तकबाल किया। शहर के काजी ने उन्हें शहर की चाबी दे दी, मगर फौज का वो हिस्सा जो बागी था वो लड़ा। ये खाना जंगी थी। नूरुद्दीन जंगी की बेवा सुल्तान अयूबी की हामी थी। वो अपने खामिंद के मकासद की तकमील चाहती थी। एक ही रात में बागी फौज को शिकस्त हुई। रात ही रात अल-मुल्क सौले, उसके हाशिया बरदार उमरा और 2-3 सालार और बागी फौज दमिश्क से भागकर हलब चले गए। अल-मुल्क सौले अपनी बहन शमसुन्निसा को भी साथ ले गया। जिन उमरा और कलादारों ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया उनमें हरन का किलादार गुमगश्तगीन और मूसल का अमीर सैफुद्दीन गाजी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अल-मुल्क सौले ने हलब को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। फिर ये शहर उसकी फौज गुमगश्तगीन और सैफुद्दीन की अफवाज का मुश्तरका हेडक्वार्टर बन गया। इन सब के पास सलीबी मुशीर आ गए। उनके साथ शराब और लड़कियां भी आईं जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि जासूसी और जहनी तखरीबकारी की माहिर थीं। सलीबियों ने उन्हें बराए नाम जंगी मदद भी दी और अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को इस तरह इस्तेमाल किया कि उनके दिलों में सुल्तान अयूबी की मुखालिफत पुख्ता हो गई। नूरुद्दीन जंगी की बेवा रजी खातून दमिश्क में रहीं, जहां उन्होंने लड़कियों को फौजी ट्रेनिंग देने का इंतजाम कर लिया और उन्होंने जहां जरूरत पड़ी इन लड़कियों को इस्तेमाल किया। वो जवानी की उम्र में थी। उनका खामिंद मर चुका था। उनके 2 ही बच्चे थे, दोनों उनसे छीन लिए गए। वो मासूम बच्चे थे। माँ ने सीने पर सिल रख ली और अपने आप को ये यकीन दिलाया कि उसके बच्चे भी मर गए हैं, मगर कभी कभी ममता उभर आती है और उसके आंसू निकल आते हैं।